पहले मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि वीडियो तुम्हारे लिए ज़रूरी क्यों है। अगर आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए डायमंड है। अगर आप किसी और डेवलपमेंट के लिए या साइबर सिक्योरिटी ब्रांच से हो तब भी ये आपके लिए फायदेमंद है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल के लिए साइबर सिक्योरिटी के लिए कैसे फायदेमंद है? जब साइबर सिक्योरिटी में आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे एक एथिकल हैकिंग या पेन टेस्टिंग फील्ड आता है, वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग। वहाँ पे आपके लिए बहुत ही काम आएगा। कुछ एडवांटेज की बात करते हैं HTML के। Easy to learn, simple syntax, no need of programming language. Gate entry for beginners in web development, compatible with Windows. If we talk about Windows, Linux, Ubuntu, any other OS, it's compatible with any OS. हाँ, और एक बात, एडिटर फ्री है, नो नीड फॉर पेड सोर्सेज, किसी भी एडिटर से काम चला सकते हैं। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हैं तो स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का। इस वन शॉट वीडियो को देखने के बाद आपको HTML कंप्लीट समझ आएगा। अगर आपने अभी HTML सीख लिया तो इससे आपका रिवीजन होगा, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल साइबर हियर। अब तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो में क्या क्या देखें, क्या क्या सीखेंगे। सो व्हाट विल यू अंडरस्टैंड हियर, व्हाट विल यू डिस्कस। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, व्हाट इज HTML, हाउ HTML fits with CSS वगैरह। Then we will go for text heading, then links and images, listing, tables, formulas, systematic HTML, multimedia embedded, best practices। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में क्या है? HTML stands for Hypertext Markup Language. It is a standard language for creating web pages. HTML structures your content, while CSS styles and JavaScript make it attractive. Just imagine a human, a person. Skeleton means just imagine a skeleton as a HTML, muscle body as in CSS, and functions what can language do as JavaScript. I hope it's clear. So let's go. Then, if I will tell you why its name is hypertext markup language. So hypertext text links to other documents. It links one document to another document. That's called hypertext. Then markup. Markup means tags used to describe content. Then language, it follows a set of rules, so it's in language and syntaxes. Then we will go for a boilerplate. What HTML boilerplate? HTML boilerplate, it's basic structures. Every HTML document starts with a basic structure called a boilerplate. Let me show you that boilerplate. This is an easy boilerplate. This is a boilerplate. Is it clear? Where we refer to this doc type HTML, it tells the browser that it's an HTML5. Then HTML language is equal to English. So root element, it's called root element, where we set language with English. Then for heading, it contains metadata, where meta character UTF-8 supports all characters like emoji. UTF-8 supports all characters with emoji. Then a name, then it's a title. Title reports to what is the name of the page, title shows in the browser my first HTML page. Then we would close this head tag. Then there is the body. Body contains some heading paragraph. It says then follows this body tag and HTML. This was about the boilerplate. Let me do one thing. I will delete it. So this is a shortcut trick. Let me do again. If you are using VS Code, what to do? You have to just enter this exclamation sign, then press enter. You will get. This is clear now. Cool. Then HTML tag, we have to close it at last. Here this was the first tag open.
then head tag of closing. Let me tell you this. Every tag starts with this anchor tag. Uh, then inside we use tag, for example, paragraph, keyword paragraph. If we have to close it, no, this is the benefit of using VS Code. This backend select refers to tag is ending. Let's take it. So if you have downloaded the VS Code, VS Code, then you are trying to run this program. How it will be? Then connect to the browser first. First of all, you have to download an extension that is called Live Server. Live Server you have to download. Okay, if you have it, another thing you can download here for extension is then HTML. Search for this extension. It will help. If you want to install, but I don't need like this time, so I will close it. So let me change this title. I will let it be title here body or paragraph. This is my first step. This is my first HTML page. How to run this? Right click on your CPN, then open with Live Server. Open. This is my first HTML page. Hope so this is clear. Now let's go back to our syllabus. Then there are some HTML uses different tags to structure text. Like this paragraph we discussed now. Another tags are here. Set form. What will this do? We'll show you the data. Subscribe. What will this strong tag do? First I will show you. Look, it's come in bold letter. So strong, what will you do? It shows importance, usually bold. Sometimes it's highlighted. Bold. Another tag we will discuss here, that is emphasis EM. Yeah, this is an italic. Here we can write anything and using italic. Let's see that. Font change something like italic format. Now another tag we discuss it. You stand for underline. If I have to underline any text, for example, I'll write here like this way. Oh, like this. Then I will go again. There it's coming with underline. Also, this is not clear. Then we will go with another one that is mark. It comes with highlighted mark. Share with your friends. Short form. Nobody's. I am using short form. WhatsApp chat. This is highlighted. Share with your friends. Okay. Then another one is there small. What will it do? It will small the text like meow meow. Makes no sense, but we don't care about that. Look here, it comes meow. Hope so. It's clear now. These tags are stated paragraphs, etc. There are a lot of tags. You can check them and use them if you are practical. And another thing we will discuss here is headings. Delete all of them. I will use some headings. What are the heading tags? There are usually 6 heading tags.
H1, H2, H3, H4, H6. These are 6 heading tags. How they will work? But if I will use if I will use H1, heading 1, then you will see the difference between these heading tags. H2, heading second to what, and you can see the difference. Let me run this, open apply server. Heading second, this is the heading 1. It's bold, there's a lot of font size, it's just smaller. If you use H3, H4, size will be decreases. Gone. H3, heading 3, then so on, so on, so on. You can see the size is getting smaller and smaller. It decreases. Obviously. So this was all about the heading tags. Now I will tell you, if you are using VS Code, then it's good. If there is another editor, then it's also good. For VS Code, it's called as SmartWork. So this was about the first session. So we will go now the links. We'll check how these links work. Let me, heading is link example. So let's start. I will use a paragraph. In paragraph, I will use this anchor tag. href. What I want to open google.com. It is select. Then I will use target. Target is equivalent to blank. Finish. Then I will use this go to Google. Now let me open within a live server. Open it live server. Let's go to Google. ये लो Google on हो गया. ठीक है जी, चंका है जी. So what next? If we had to take another, let's try with another href tag. If I had to also open https://facebook.com, then target abc, then Facebook. खलास, ठीक है ना जी. So if I click here on Facebook, I will go to Facebook. Because of this, I am connecting Facebook with this link. सही है ना? So now if I had to add images, how to do that? Let me clear this. I will use H2 for images. I am here trying to insert some images here. How to do that? img image source is equal to, you have to download some images in the same folder where you are working. I have downloaded an image, download.jpg. Let me write down the name, download.jpg. So keep in mind, you have to download the image in the same folder where you are working, where you are creating your HTML document. Then I will use some alt tag. This is what kind of name, for it's an HTML. Finish. Alternative HTML. Then I will get some width. Let me use, you can't ignore this, you can adjust then in CSS. Height, height, height is equal to 200. क्या सीन है भाई? 200. ठीक है, फिर मैं टैग बंद करूँगा.
चलो चेक करते हैं। लाइव सर्वर, ले भाई ये हो क्लियर। तो क्या सीखा हमने, जब भी हमें कुछ इमेज लिंक करनी हो, इंसर्ट करनी हो, तो हम लिखते हैं इमेज, इमेज टैग यूज़ करते हैं, देन सोर्स देते हैं, SRC सोर्स देते हैं वगैरह। तो ये अगर वो लोड नहीं होगा तो ये वाला टैग, इसकी विड्थ क्या है, इसकी हाइट क्या है, ये सीन है। ठीक है, तो ये ALT टैग क्यों है, अगर वो लोड नहीं होगा, अगर वो मिसिंग होगी तब ये वाला काम करेगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखूंगा इधर डाउनलोड वन है ही नहीं इधर, तो देखो वहाँ पे HTML आएगा। कैसे ही ना, देखो HTML और इमेज लोड नहीं है क्योंकि है ही नहीं, ऐसा सीन। ठीक है, तो आप पढ़ते विड्थ एंड हाइट किस लिए यूज़ करते हैं, साइज कंट्रोल करने के लिए। पढ़ते हैं आगे। आगे क्या सीन है, लिस्ट्स। जो लिस्ट्स, लिस्ट कितने किस्म के हैं, 2 किस्म के हैं, इसमें 3 किस्म के हैं। तो पहले को हम लिखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, और एक है अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और एक सीन है इसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तीनों का एग्जांपल देखेंगे, समझ जाएंगे क्या सीन है। ले भाई मैं पहले चेक करता हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाता है। यहाँ पे लिखूंगा H3 में अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है दोस्तों, तो फिर क्या करते हैं भाई लोग काम, अपन ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूल टैग यूज़ करेंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट, कौन सा लिस्ट आइटम रखना है, LI की मदद से यूज़ करेंगे। मुझे रखना है एप्पल, मैंगो, ठीक है ना, दोनों। फिर मैं करूँगा जवान, ठीक है जवान। फिर ये 3 चीज़ें, और एक सीन पहले चेक करते हैं। इसको रन किया, इसको रन किया, ये हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये हो गया अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अभी क्या सीन है, मुझे शॉर्टकट में अगर बनाना पड़े तो कैसे करूँगा मैं वो, कितने 3 आइटम चाहिए वाला, ये हो गए 3 आइटम, एक ही सेकंड में। ठीक है ना, ये है शॉर्टकट। अंदर फिर तुम दो क्या कंटेंट देना है, ये सी, ये हो गया ये सी। अब दूसरा ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट के लिए OL ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट, यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखूंगा, तुम देखना क्या सीन है। टाइप इज इक्वल टू, बताता हूँ क्या चीज़ है। कुछ लिस्ट आइटम रखते हैं, कितने चाहिए मेरे को, मेरे को 3 मान। यहाँ पे मैं लिखूंगा सब्सक्राइब, नीचे गया लाइक, इधर लिखूंगा कमेंट। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये सीन है, ठीक है। रन करते हैं, ये देखो ABC, ठीक है। वहाँ पे टाइप ABC लिखा ना, उसके बाद से अब मैं अगर इधर टाइप लिखूंगा 1, देखो कैसे 1 2 3, उधर लिखूंगा ABC तो ABC आएगा, इधर लिखूंगा 1 2 3, ये चीज़ है, ये फर्क पड़ता है। हम ऑर्डर लिस्ट की बात कर रहे थे, ठीक है। अब और एक लिस्ट है, जैसे क्या, इसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। चार्ट में लिखूंगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। कैसे बनाते हैं, साले दिल, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसमें क्या आइटम रखना, DT, ठीक है। DT में लिखूंगा HTML,
फिर लिखूँगा एंटिटी में साइबर हीरो 04, फिर लिखूँगा एंटिटी में सब्सक्राइब। तो ये सीन है, ठीक है। इसको रन करते हैं। दे HTML साइबर हीरो सब्सक्राइब, कुछ तुम्हें दिख रहा? HTML साइबर हीरो सब्सक्राइब, ये भी एक लिस्ट है। डिस्क्रिप्शन, ऐसा समझो डॉक्टर जब नुस्खा लिखता है ना, वो क्या लिखता है वो पता नहीं, तुम्हें ये दवा लेनी है तो वो डिस्क्रिप्शन कहते हैं ना एक किस्म की, वैसा सीन है इसमें। अनऑर्डर्ड में वो डॉट डॉट आएगा, जैसे तुम चाहोगे उसको आगे जाके तुम कस्टमाइज कर सकते हो। ऑर्डर्ड लिस्ट में तुम्हें कैसा सीरियल वाइज चाहिए तो वो सीन है। और एक होता है नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट। वो कुछ खा है भी नहीं, आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिस्ट के अंदर लिस्ट, एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट। तो अब चलते हैं टेबल्स पे। तो अभी तक हमने पढ़ा लिंक कैसे करते हैं, इमेज लिंक्स वगैरह। तो अब बढ़ सकते हैं टेबल पे। इधर मैं हेडिंग लगाऊंगा H1 करके टेबल, ठीक है। तो इधर क्या सीन है टेबल के, शुरू करते हैं टेबल बॉर्डर। टेबल दिया, बॉर्डर दिया, वन। अब बॉर्डर से क्या क्या हो सकता है वो मैं बताऊंगा। फिर मैं दूंगा सेल पैडिंग, ये सब ऑप्शनल है, ये सब असल में CSS में संभाली जाती है, बस इधर थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए। सेल स्पेसिंग मुझे 0 का, ठीक है। ऐसा शुरू करता हूँ इसे टेबल रो से। पहले टेबल रो ही चाहिए ना, टेबल रो। इसमें टेबल हेडिंग लिखूंगा, क्या टेबल हेडिंग में क्या लिखूंगा मैं, नेम, फिर एक टेबल हेडिंग, इसमें लिखूंगा मैं एज, फिर एक टेबल हेडिंग, इधर लिखूंगा मैं कंट्री, ठीक है। तो ये हो गया मेरा टेबल रो कंप्लीट। अब इसके अंदर मुझे डेटा रखना है वगैरह वगैरह, सेम मैं टेबल रो ही लिखूंगा। अब टेबल हेडिंग की जगह मैं लिखूंगा TD, टेबल डेटा। टेबल डेटा में फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा अली, फिर लिखूंगा मैं टेबल डेटा के लिए मैं लिखूंगा एज क्या है इसके बंदे की 66, ठीक है। फिर लिखूंगा मैं TD, कहाँ का रहने वाला है, इंडिया का रहने वाला है ना। सेकंड ना जवान, इसी को कॉपी करूंगा, फिर नीचे जाऊंगा, इधर अली की जगह वली लिख दूंगा, इसकी चेंज कर दिया, हो गए 2। चल सेम है, समझाता हूँ। ये देखो, नेम एज कंट्री, अली था पहला नाम, दूसरा था वली, एज क्या है सीन क्या है 61, इंडिया इंडिया, ठीक है। तो अब समझते हैं क्या कैसे हुआ। पहले शुरुआत जब भी टेबल करेंगे तो टेबल से करेंगे, टेबल से। बॉर्डर इज इक्वल टू 1, ये सब CSS में पढ़ाया जाता है। जब CSS के लिए पढ़ोगे तो तब काम का है। इधर बस ऐसे बॉर्डर मैंने 1 दिया, सेल पैडिंग, सेल पैडिंग मतलब ये कहाँ गए भाई लोग, उस सेल स्पेसिंग, ये रहा पैडिंग, कितना कितना डिस्टेंस चाहिए इनके बीच में। ये रहे बॉर्डर, ये रहे सेल स्पेसिंग, कितना स्पेस मांगता, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर टेबल के बाद शुरू करते टेबल रो से। पहला जो ऊपर होता है उसे कहते हैं टेबल हेडिंग, उसमें मैंने 3 लिखे। फिर टेबल डाटा भी उतना ही लिखोगे जितना हेडिंग दोगे, ज़्यादा कम नहीं दोगे। अगर तुम चाहते हो कि एक ही डेटा दूसरे में है तो उसके लिए वो उसे कुछ कहते हैं, हाँ, एक ही डेटा दोनों में आ जाए वो भी पढ़ लेंगे। तो ये सीन था टेबल के लिए। इधर क्रैश कोर्स है, हम जल्दी में आगे आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा टेबल, ठीक है। तो अब क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे टेबल तो हो गया,
अब आ गया फॉर्म्स। ठीक है, फॉर्म्स शुरू करते हैं। सिंपल सा फॉर्म क्रिएट करेंगे। जब अगर फॉर्म को डेप्थ में तुम्हें पढ़ना है तो अलग बात है। यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, क्रैश सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। एच टू फॉर एग्जाम्पल फॉर्म, फिर लिखते हैं हम एक्शन, एक्शन लिखते हैं सबमिट। ये बैकएंड में काम आता है। जो वेब डेवलपर हो वो अच्छे से जानते होंगे, जो करना चाहते हैं वो आगे जाके समझ लेंगे कौन सा मेथड। पोस्ट, ठीक है ना। फिर पहला ही सीन लेबल से शुरू कर। लेबल फॉर नेम, नेम, ठीक। इनपुट टाइप इज इक्वल टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट में लिखना है। आईडी दो नेम से, आईडी दो नेम से, और नाम इज इक्वल क्या है, नेम इज इक्वल नेम। एक स्पेस चाहिए, बी आर की मदद से हम स्पेस देते हैं, और एक स्पेस देंगे थोड़ा अच्छा लगेगा। ये बी आर टैग टू भाई नाराज क्यों हो गए, ये ले चेक करते पहले इतना सा। नेम देखो, नेम नाम क्या है, पहले कुछ नहीं होगा स्पेस मार्क। आगे हम किए नहीं कुछ, अभी तो हमने नाम लिया। अब हम लेंगे लेबल। अब मुझे ईमेल लेनी है, ठीक है। मैं लिखूंगा लेबल फॉर इज योर ईमेल, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगा इनपुट टाइप, इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल। मैं क्या लिखूँ, ईमेल। इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल। फिर सेम के साथ आईडी दो, ईमेल ले देता हूँ, नेम भी दो, ईमेल ले देता हूँ। फिर सजाने के लिए थोड़ा लाइन वाइन स्पेस देने के लिए बी आर टैग यूज करूँगा। चलो चेक करते हैं कैसा बन गया हमारा। क्या, ये रहा हमारा ईमेल। अब यहाँ पे ईमेल क्यों नहीं लिखा गया पहले मैं भी बताऊँ क्यों। यहाँ जो हमने लिखा ही नहीं ईमेल, समझिए। अब मैं रन करूँगा, ABC @GH। ये सीन है यहाँ पे ईमेल। अब आगे बढ़ते हैं पासवर्ड के लिए। अब अगर मुझे पासवर्ड लेना हो, सिंपल सा थोड़ा शॉर्ट करते हैं, टाइम भी वेस्ट ना हो। लेवल पर पासवर्ड क्या, लेवल पर पासवर्ड, तेरा ये कहाँ गया फिर, ये है ये नेम इज इक्वल पासवर्ड, आईडी इज इक्वल पासवर्ड, सब सही है। चेक करते हैं, कुछ तो गलती हो गई हमसे। कहाँ गलती हुई, ये क्लियर इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, ये बात डबल देना है ना। हाँ, पासवर्ड लिखूंगा मैं तो वो दिखेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इनपुट टाइप पासवर्ड रखा।
तो ये सीन है इसका। अब फिर से अगर हमें लेना हो, क्या बोलते हैं उसको, रेडियो बटन यूज़ कर, तो रेडियो बटन कैसे यूज़ करते हैं, मैं इधर लिखूंगा पैराग्राफ, रेडियो बटन्स। अब रेडियो बटन ही बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ जेंडर के लिए, पैराग्राफ जेंडर के लिए। इनपुट टाइप रेडियो, input type is equal to radio, id is equal to, से क्यों करते हैं, मेल, id is equal to मेल, नेम में मैं रखना चाहता हूँ जेंडर, ये हो गया वैल्यू इज इक्वल टू मेल, क्योंकि मेल है ना पहला से। अब ऐसे बंद करूँगा, अब ये वाला सीन ऐसे चलेगा, ले भाई सजाने के स्पेस देने के लिए ये, ठीक है। इनपुट इज इक्वल टू रेडियो, इनपुट टाइप। अब अगर फीमेल को बनाना हो, सेम कॉपी करूँगा, आईडी इज इक्वल टू इस बार फीमेल, चलो जवान चेक करते हैं, देख मेल या फीमेल, मेल या फीमेल जेंडर, मेल या फीमेल, ये हो गया रेडियो बटन्स। अब अगर हमें और एक चीज़ आता है इसमें, इसे कहते हैं चेक बॉक्स। ये समझ आना कैसे रेडियो बटन काम करता है, इधर से है ना रेडियो बटन, ये ऊपर वगैरह जो तुम्हें लिखना, ठीक सिंपल से सेम थिंग, इसे याद रखना है। इनपुट टाइप क्या देना है, आईडी, नेम, वैल्यू, और क्या चीज़ तुम वहाँ दिखाना चाहते हो वो रहा ये वाला मेल, वैल्यू, नेम, जेंडर। अगर ये दोनों सेम नहीं होंगे, नेम नेम, तो बहुत से काम देखो क्या सीखना होता है। अगर मैं इसको लिखूँगा वन जेंडर, उधर जेंडर रखूँगा, इधर मेल भी होगा फीमेल भी होगा, इसलिए ये सेम होना चाहिए, तभी एक ही क्लिक कर सकते, इसलिए नेम सेम होना चाहिए। आईडी भी डिफरेंट होनी चाहिए। जब तुम CSS वगैरह फिर आगे इसमें ऐड करोगे, जावास्क्रिप्ट आगे और काम करोगे, तब आईडी काम आएगा तुम्हारे। वैल्यू भी होनी चाहिए, जो वहाँ पे वो क्लिक करे वो वैल्यू आप पीछे जाएगी बैकएंड में, तो वो क्या चीज़ है वो तो एटलीस्ट समझ में आना चाहिए ना। अगर दोनों में वैल्यू में मेल मेल लिखोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वो मेल क्लिक करे या फीमेल क्लिक करे, जो पीछे रिजल्ट जाएगा वो मेल ही जाएगा। तो ये थे हमारे रेडियो बटन्स। अब हम बढ़ते हैं आगे, चेक बॉक्स। पैराग्राफ लिखूंगा, इसके लिए चेक बॉक्स के लिए। चेक बॉक्स क्या चीज़ है, हॉबीज़ के लिए मैं यूज़ करूँगा इसको, एक हॉबीज़ की लिस्ट। इनपुट टाइप इज इक्वल चेक बॉक्स, इनपुट टाइप इज इक्वल चेक, नेम इज इक्वल दूंगा मैं हॉबी, तो उसके बाद मैं वैल्यू दूंगा, वैल्यू कैसे इन्हें पहले रीडिंग, और ये मेरी स्पेलिंग भी बहुत गलत हो, लिखनी क्या चाहिए रीडिंग वाले से। उसके बाद सेम यही कॉपी करूँगा मेरी वाली लाइन, इधर नेम हॉबी, वैल्यू पहला क्या था रीडिंग, इनपुट टाइप इज इक्वल टू नेम। अब वैल्यू रखूँगा मैं और कोई वैल्यू, हाँ ट्रेवलिंग, इधर भी ट्रेवलिंग, ठीक है ना, ट्रेवलिंग, ठीक है। और एक लगाते भाई, और एक हॉबी बताओ, गेमिंग, ये गेमिंग निकाल देता हूँ मैं।
और एक बताओ। और एक कोडिंग लिखते हैं, क्या पता कोई कोडर हो यहाँ पे, उसके लिए कोडिंग होना चाहिए वरना नाराज हो जाएगा। कोडिंग। कमेंट्स में बताओ तुम्हारी क्या हॉबी है, ठीक है। कमेंट में लिख देना तुम्हारी क्या क्या हॉबी। चलो इतना शुरू करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। हॉबीज क्या क्या, रीडिंग, ट्रैवलिंग, गेमिंग, कोडिंग। चारों के चारों क्लिक कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर मुझे एक ही क्लिक करना उनमें तो उसके लिए मैं रेडियो बटन यूज़ करूँगा। अगर मुझे चारों चाहिए, मल्टीपल चॉइस। ले भाई ये क्या सीन, ठीक है। फिर से दिखाता हूँ आउटपुट। हॉबीज़, रीडिंग, ट्रैवलिंग, गेमिंग, कोडिंग। मुझे जो जो पसंद है, फॉर एग्जाम्पल रीडिंग तो छोड़ ही दो, ट्रैवलिंग भी छोड़, गेमिंग, कोडिंग, ठीक है। तो ये सीन है इसके लिए, चेक बॉक्स के लिए। और एक आता है सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। सेलेक्ट ड्रॉप डाउन काम कैसे करता है दिखा। सेलेक्ट, क्या हो गया मेरी स्पेलिंग। सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, सिंपल सा लेबल लिख दो भाई। लेवल फॉर कंट्री की बात करना चाहूँगा मैं यहाँ पे। व्हाट इज दिस बिहेवियर। कंट्री, थोड़ा सा इधर ऐसा कॉलन दूंगा मैं, बाद में बताऊंगा क्या सीन है। जब आउटपुट आएगा ना तब अच्छे से समझा दूंगा। सेलेक्ट आईडी इज इक्वल टू कंट्री, फिर लिखूंगा मैं नेम इज इक्वल टू कंट्री, फिर इधर बंद कर दूंगा ऐसा, सही है ना। फिर इधर लगाऊंगा ऑप्शन वैल्यू। ऑप्शन वैल्यू सेलेक्ट टैग जो होता है ये कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, क्या सीन है वही, इसी को हम सेलेक्ट ड्रॉप डाउन कहते हैं। ऑप्शन वैल्यू में दूंगा, क्या पता कोई समरी फॉर्म यूएसए। फिर मैं इसका सीन ऐसा बंद करता हूँ, इधर क्या दिखना चाहिए, यूएसए दिखना चाहिए, ठीक है। वैल्यू वो पीछे जाएगा, बैक एंड फ्रंट एंड में जो दिखेगा वो वही है यूएसए। इसी को मैं भी करूँगा, नीचे पेस्ट करूँगा, फिर से पेस्ट करूँगा। अब यूएसए की दूसरा बताओ। इंडिया भाई नाराज रहेगा ऊपर। नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना, ये ऐसा करना। नेपाल, क्या अगर कोई नेपाल से देख रहा है नीचे कमेंट में लिख दो प्रेजेंट सर। फिर मैं इधर थोड़ा स्पेस दूंगा, ठीक है, क्योंकि आगे जो कोड करेंगे उसके लिए चाहिए। तो ये रहा ये देखो कंट्री, सेलेक्ट ड्रॉप डाउन कौन से कंट्री से है, ये ऐसा सीन है, ठीक है। देखा होगा फॉर्म में, जब गूगल फॉर्म फिलअप करते हैं तो ये सब चीज़ें वहाँ देखने को मिली होंगी दोनों। नेम भी चेक किया, ईमेल भी, पासवर्ड भी, रेडियो बटन भी, चेक बॉक्स भी यूज़ किया, सेलेक्ट ड्रॉप डाउन भी यूज़ किया। अब आते हैं टेक्स्ट एरिया पे। टेक्स्ट एरिया हेडिंग ही लिखता हूँ भाई, क्या दिक्कत है। टेक्स्ट एरिया मुझे हेडिंग लिखना था। लाहौर फिर डायरेक्ट लेवल, लेवल फॉर इज इक्वल टू मैसेज, इधर लिखूंगा मैसेज। मसाज में अगर ए लिखोगे इधर तो मसाज हो गया। इधर थोड़ा स्पेस दूंगा मैं बी आर कमांड, बी आर टैग की मदद से। फिर जाऊंगा टेक्स्ट एरिया पे, आईडी दूंगा मैसेज, नेम भी रखना चाहूंगा मैं मैसेज। और क्या रख सकते बताओ बताओ, कितने रोज चाहिए। रोज भाई साहब 4 चाहिए। कॉलम्स कितने चाहिए, कॉलम्स दे दे भाई 10।
इतना काफ़ी, इतने में हो जाएगा। फिर ऐसा चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट एरिया देखो कैसे काम करे। है भाई, कहाँ गया भैया? लेवल फॉर मैसेज, लेवल मैसेज लेवल भी है, कहाँ गलती हुई क्या है? टेक्स्ट एरिया आईडी भी दिए, नेम भी लिखे, रोज भी दिए, कॉलम भी दिए, तो टेक्स्ट एरिया को बंद भी किया, तो शो का नहीं हो रहा है। बड़ा स्पेसिंग देता हूँ मैं। होता है बड़े बड़े शहरों में, ऐसी छोटी छोटी बातें होती है। ये क्या सीन है भाई, ये क्या सिस्टम? मुझसे कोई गलती हुई क्या? टेक्स्ट एरिया लिख लिया मैं, स्पेलिंग सही है ना? आईडी वगैरह, नेम वगैरह, रो भी दिया, कॉलम भी दिया। थोड़ा कॉलम बढ़ा दूँ, क्या पता स्पेसिंग की दिक्कत हो। अगर मैं इधर लिखूँ थोड़ा सा ABC शुरू, तब तो दिखना ही चाहिए। इधर नहीं भाई, इधर नहीं। इधर अगर मैंने, ताकि मुझे दिखे वहाँ पे क्या सीन हो। इंटरनेट इंटरनेट तो है ना, शो का नहीं हो रहा। चल देखते हैं इसको, देख लो क्या सीन है ये टेक्स्ट एरिया का। टेक्स्ट एरिया का भी देख लो, उससे पहले मैं तुम्हें सबमिट वाला दिखा दूंगा, उसका भी देख लेंगे। मुझसे कहीं गलती हुई होगी कुछ, मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग ही। सो लेट्स ट्राई दिस, पैराग्राफ इज इक्वल टू सबमिट। और याद रखना, कोडिंग की दुनिया में आए हो तो एरर से डरने का नहीं, एरर आते रहते हैं, तो इन चीज़ों से भागना नहीं है। देखना कहाँ गलती हुई, इंसान से ही तो गलती होती है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, सबमिट इस चीज़ से सबमिट होगा हमारा काम। वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू, ओ आप समझ गए भाई हमारे साथ क्या सीन है। इधर ही पता चला, ये जो है हम इसके अंदर लिख रहे थे, हमें नीचे लिखना है। मैं समझो क्या सीन हो रहा है। वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट, ठीक है। बस इतना सा काम होने के बाद फॉर्म टैग नीचे क्लोज, अब रन करते हैं। ये देखा गया टेक्स्ट एरिया, ये ABC जो मैं चाहता था, आ गया टेक्स्ट एरिया। वो क्यों नहीं काम कर रहा था, अगर आप उनको समझ नहीं आया तो मैं बताता हूँ अभी। अब देखो मैं इधर सबमिट करूँगा, आगे तो कुछ होगा नहीं, वो तुम्हें भी पता है। मैं जो ये टेक्स्ट एरिया वाला फील्ड है इसके अंदर लगाया था, सेलेक्ट टैग के अंदर, इसलिए काम नहीं कर रहा था। so I replace it and I paste it here. Now it is working. So this was all about forms. Hope you like this one. Thank you. अब हम आगे भी पढ़ेंगे। इतना अगर तुम्हें अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक। अब हम कहाँ कहाँ पूछे अभी तक, इंट्रोडक्शन भी हो गया हमारा, वेदर प्लान भी, हेडिंग भी पढ़े, लिंक एंड इमेज पे, लिस्ट भी, टेबल्स भी, फॉर्मल भी। Now we'll go for semantic tags, then after that multimedia and embedded, then we'll go for best practices. क्या सीन है समझाता हूँ मैं। पहले जो ये क्लिप बनाए थे फॉर्म वगैरह, इधर डिलीट मारते हैं, हमें तो इससे कोई काम ही नहीं है, इसको बैक करते हैं। तो सिमेंटिक टैग, सिमेंटिक जो है, सिमेंटिक टैग्स वगैरह एलिमेंट जिसमें है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब हम वेबसाइट डेवलप करते हैं तो हमने जो कंटेंट बनाया वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में काम आए। तुम यू आर मेकिंग एन वेबसाइट अबाउट
college, so you have to use them, you have to use these elements, तो तुम्हें यूज़ करना है। हेडर क्या होना चाहिए उसमें, नेविगेशन वगैरह वगैरह, मेन कंटेंट, उनकी वजह से वो एसईओ में आ। कोई भी कॉलेज के बारे में जब सर्च करेगा यूज़र तो उसकी फीड में वो आ जाए, ठीक है, उसके लिए ये बंद करता है। तो पहला जो एलिमेंट है उसे कहते हैं हेडर। फर्स्ट एलिमेंट इज हेडर, इट इज यूज्ड फॉर पेज सेक्शन हेड। यहाँ पे क्या होना चाहिए, जैसा कि ब्रांड वगैरह, ब्रांड क्या है, ब्रांड साइबर हीरो, ये वाला सीन है, ठीक है। ब्रांड वगैरह लिखते हैं, नेविगेशन लिखते हैं, नेव टैग नहीं कहते, H1 H2 अक्सर यूज करते हैं इधर हेडर में। तुम्हारे सामने भी लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे लिखूंगा साइबर हीरो, साइबर हीरो। तो ये सीन है हेडर का। अभी कैसे आउटपुट में दिखाता हूँ क्या। उसके बाद आते हैं नेव टैग्स, वो भी इसी के अंदर का यूज करो तो अच्छी बात है। नेव टैग्स किसे, नेविगेशन, नेविगेशन तो प्राइमरी नेविगेशन। अब मुझे नेविगेट तो करना ही नहीं कुछ चीज़ें। यहाँ पे लिखूंगा मैं सब्सक्राइब वाला सेक्शन, बस छोड़ देता हूँ एक नेविगेशन बना के। देन हेडर के बाद आता है मैन। मैं ये बता रहा हूँ हाउ टू एग्जैक्टली मेक एन वेब पेज, क्या सिस्टम होना चाहिए, कैसा काम। बॉडी के अंदर जाओगे तो पहले हेडर लिखोगे, उसके बाद मैं हेडर में क्या क्या लिख सकते हैं, हेडिंग टैग्स, नेव टैग्स। तो ये सीन है। मेन टैग में मैं यूनिक कंटेंट ऑफ द पेज, कंटेंट पेज लिखना है, इसके अंदर लिखते हैं आर्टिकल वगैरह। फॉर एग्जाम्पल पहले शुरुआत करता हूँ आर्टिकल्स, लीगल टैग। यहाँ पे लिखूंगा मैं कुछ वेलकम टू माई चैनल, ऐसा सीन। ये रहा मेरा सिस्टम, और आगे आगे जितना तुम्हें चाहना है उतना। और एक टैग यूज करते हैं हम यहाँ पे सेक्शन। सेक्शन कैसे है, यहाँ पे लिखते हैं आर्टिकल को ग्रुप करने के लिए। तुम सेक्शन टैग के अंदर भी आर्टिकल लिख सकते हो, उसके बाहर भी, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, जैसे सजावट होता है। असल में सेक्शन टैग में आर्टिकल टैग अच्छी बात है, ठीक है। सेक्शन में लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल ABC, फिर अंदर ही लिखूंगा आर्टिकल टैग। पहले सब्सक्राइब टू माय चैनल, और एक आर्टिकल इसके नीचे, बस इतना काफी समझ रहा हूँ ना। तो और एक आता है असाइड करके टैग, असाइड नाम से थोड़ा हट के भाई। यहाँ पे हम यूज करते हैं रिलेटेड लिंक्स, जो रिलेटेड हो, साइड बार वगैरह होता ना सीन, जैसा ये साइड बार ही समझो। रिलेटेड टैग्स जो तुम रिलेट करना चाहते हो किस मुताबिक से, ठीक है। यहाँ तो मेरे पास है नहीं कुछ, XYZ, ठीक है, XYZ। फिर आता फुटर, फुटर भी एक टैग है। फुटर में नीचे क्या क्या लिख सकते हैं, पहला कॉपीराइट सेक्शन देखो, अगर तुमने कहीं पे लिखा होता है ना, कॉपी राइट है, सो कॉपीराइट का लोगो थैंक कुछ ऐसा करके 2025 ऐसा वाला सीन, ठीक है। फुटर में ही लिखते हैं। वो नीचे, वो नीचे जो आता है ना, वो इसमें लिखते हैं फुटर वाले। और एक अब आता है जब तुम्हें फिगर एम्बेडेड करने हो, फिगर वगैरह लगाना हो, उसके लिए अच्छा रहेगा फिगर यूज कर। फिगर, उसका कैप्शन भी देना चाहिए ना, फिगर कैप्शन, अली फिगर कैप्शन XYZ वॉट एवर, मैं लिखा ZYZ, तो मर्जी। तो ये फिगर टैग। और कभी तुम्हें काम करना हो टाइम डेट के साथ, तब टाइम डेट लिखो, टाइम जो डेट टाइम क्या है लिखो, कुछ भी जो टाइम डेट हो, ठीक है। और एड्रेस का भी यूज़ कर सकते हो तुम, एड्रेस, ठीक है।
एड्रेस तो पता ही ना किस लिए यूज़ करते हैं। एड्रेस बेंगलुरु, बेंगलुरु, बेंगलुरु छोड़ो, वर्ड एड्रेस टैग में यूज़ करते हैं। और एक होता है डिटेल्स। मैं किसी की डिटेल्स बता नहीं तो डिटेल्स में बता दो दिस चैनल, दिस चैनल, ठीक है। अबाउट क्या है इसमें, साइबर सिक्योरिटी है ना, साइबर सिक्योरिटी डिटेल्स वगैरह। और एक सीन है समरी लिख सकते तुम, अगर तुम्हें कहीं चीज़ समरी करनी हो गई समरी कर सकते हैं। समरी लिखूंगा मैं ABCD। और एक होता है मार्क, अगर तुम्हें कहीं पे हाईलाइट करना हो मार्क टैग यूज करते हैं। मार्क टैग में लिखूंगा मैं साइबर हीरो 0, ठीक है। तो ये वाला सी, तो ये थे ये टैग्स। हाँ नहीं ये देखो क्या सीन है, ये हो गया हाईलाइटेड साइबर हीरो सब्सक्राइब। तो इधर भी स्पेलिंग गलत, पता नहीं मेरे साथ यही क्यों होता है। वेलकम टू माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एक वैसे कॉपीराइट वगैरह। ये फुटर है, अभी फुटर में क्यों नहीं आया, क्योंकि उसके नीचे हमने और कुछ लिखा है। असल में क्या है, फुटर को नीचे लिखता है, ठीक है। तो ये वाला सीन, तो समराइज करता हूँ कैसे लिखते हैं। पहले देखो तुम हेडर लिखोगे, हेडर में लिखोगे हेडर हेडिंग टैग्स और NAV टैग्स एरियल यूज़ कर सकते हो तुम। लिस्ट वगैरह अगर भी है कोई तो तुम चाहते हो वहाँ पे बनाने का तो बना लो, ऐसा होम आर्टिकल रहता है ना ऊपर, तो वो वाला से। फिर हेडर टैग बंद करोगे, मैन में लिखोगे आर्टिकल, आर्टिकल का हेडर क्या देना चाहोगे वो वाला सीन। उसके बाद सेक्शन, उसके बाद नीचे फुटर, अगर साइड में कुछ रिलेटेड पोस्ट करना चाहते हो तो वो वाला सीन। फिर मैन बंद करोगे और नीचे फुटर। तो ये था इसके बारे में। उसके बाद आता है हमारा इमेज और रिस्पॉन्सिव इमेज कैसे बनाते हैं, वो CSS की मदद से बनाते हैं। यहाँ पे हमें साइज़ और वगैरह देखना पड़ता है, हम किस लिए वेबसाइट बनाते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, बड़ी स्क्रीन उसके लिए, टैबलेट्स के लिए, हर जगह रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए ना से अपनी वेबसाइट। तो उसमें ध्यान देना चाहिए हमें, और वो CSS की मदद से ईजीली कर सकते हैं। और हमेशा जब भी तुम ये फिगर का ऐड करो ना, ALT टैग यूज़ हमेशा यूज करो, ALT टैग use it compulsory. So if due to some failure image will not upload, this ALT tag will help that time. Then जब वीडियो एम्बेडेड करो, जब वीडियो की बात करो, वीडियो वैसे उसका कैप्शन दिया करो, वीडियो कैप्शन करके, ठीक है। वीडियो सोर्स, पहले तो सोर्स दोगे, सोर्स दे दोगे, ट्रैक दोगे, ये सब जब वीडियो अपलोड करोगे इसमें सोर्स दोगे, ट्रैक दोगे। और उसमें मेन चीज़ है कंट्रोलर्स, ये आता है हायर में, कंट्रोलर्स, प्रीलोड वगैरह, ये जो टैग्स है। अगर आप चाहते हो कि मैं इनके बारे में डिटेल्स में एक वीडियो बना लूँ तो कमेंट में बता देना, मैं वीडियो पे एक डिटेल वीडियो बताऊँगा, वीडियो पे एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा। समझ रहे हो ना, क्या डिटेल वीडियो बनाऊँगा, कैसे वीडियो हम अपलोड करते हैं, क्या क्या टैग्स हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, कैप्शन भी देंगे, सब टाइटल भी चाहिए तो देते हैं, मीठा डेटा क्या क्या यूज़ कर सकते हैं इसके साथ, तो वो वाला सीन। ऐसा ही ऑडियो अगर करना हो तो ऑडियो के लिए भी, हाँ मैंने इस वीडियो में नहीं बताया कैसे हम ऑडियो अपलोड करते हो वीडियो वगैरह, इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा और इस सब थोड़ा एडवांस में आता है। तुम्हें फार्म वगैरह नॉर्मल से HTML सीखनी थी, उसके लिए वीडियो काफ़ी है, क्योंकि मैं यहाँ साइबर सिक्योरिटी के पर्पज़ पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें उतना काम का भी नहीं है। बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कैसे, वीडियो टैग का मतलब वीडियो ही होगा, ऑडियो का मतलब ऑडियो ही होगा। तो सीन ये, अगर आप चाहते हो कि इसमें डेडिकेटेड वीडियो बना ले तो बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ये था हमारा क्रैश कोर्स इसके बारे में। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो
लाइक करके बता देना मुझे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे जाके ऐसी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।